Go. Hello everyone, I am Vishal Chauhan, a data analytics trainer at Brilica Services. Hello everyone, good morning. This is the demo session for the SQL at the Prelica services. So this is the demo of SQL, what is SQL and how SQL is important for your learning language if you are going for the position of data analyst. Okay, so we are covering in this demo the basic things about SQL. What should you know about SQL, how you can download SQL, okay, and what is SQL actually means, and what is databases, what's its structure, okay, and what are the applications of SQL, and what is table, and how to create a database, how to create a table and its detail, what are SQL commands. So these are this demo topics. So सबसे पहले ये देखते हैं कि आप SQL डाउनलोड कैसे करोगे, कहाँ से करोगे. Okay, so let's go to the Google and search something related to SQL. Just type MySQL download. Just click on the first link and go on this download option. Okay, and just go down on this option MySQL Community GPL download. Just click on this and just click on this option SQL installer for window. If you click on this option, you get the pop-up window where you can see the download option. Just download this file, okay, and after downloading this file goes to like your the folder where the file is taking place, or normally it takes place in your download option, where automatically the files will show you about the space the software is downloaded or not. Let's click on it. So this kind of MySQL installer will show you the details about the software. Okay, if you click on this option, you have the installation process, which installation process will let you know to download this software, and after downloading this software on just like a few steps, just read in 30 to 40 seconds or a minute, you will easily able to download MySQL properly in your system. Okay, after downloading this system, you can see some thing how it will open in your laptop. Okay, so this is the thing. After downloading your SQL server, just search MySQL Workbench. Okay, just open this MySQL Workbench. Okay, and just click on this connection. While downloading, you will see you will get the option to make a connection in the SQL, and you have to create a root password and ID, so everyone can see the fill the detail, and while filling the detail, after that you can just see the connection is created, and just click on this connection to get the access of the SQL. You just need to click on this option. Okay, so if I click on this blank page, and if someone is installing SQL first time, they will see the user interface like this. So SQL क्या है, क्या क्या हमें थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए, होता क्या है. फर्स्टली आप उसे डाउनलोड कर लो. डाउनलोड करने के बाद क्या है, उसे इंस्टॉल करो. थोड़ा 1-2 सेकेंड लगेंगे आपको इंस्टॉल समझने में, कैसे इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डाउनलोड करना है. और उसके बाद क्या होगा, जब वो इंस्टॉल हो जाएगा एक कनेक्शन के थ्रू, तो आपको एक ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा. अब जो ये यूजर इंटरफेस है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है, सो दीज आर द पेजेस विच टेल यू द स्टोरी अबाउट द कनेक्शन. कैसे आप सारे कनेक्शंस को मैनेज कर सकते हो, डेटा कहीं से इंपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, उस पर कुछ सेटअप कर सकते हो उससे रिलेटेड. ठीक है, और एक साइड हमें लिखा हुआ दिख रहा है स्कीमा. अब जब हम पहली बार SQL देखते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, जो हमारे पास यूज़र इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है किसी भी, मान लो आप टूल को देखोगे, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या लिखे होते हैं, कुछ हमारे पास फंक्शंस या ऑप्शंस लिखे होते हैं, या अगर हम एक्सेल की बात करें तो यहाँ क्या लिखा होता है, रिबन्स लिखा होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो पेज है, कैसे हमें वैल्यू समझनी है, कैसे बन रहा है, इसको समझते हैं. सबसे पहले ये क्या है, हमारा पेन है, जहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
कोई भी कोड लिखेंगे या कुछ भी लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कोड कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे मूव करेंगे, नीचे मूव करने पे क्या पता चल रहा है, यहाँ नीचे लिखा आ रहा है आउटपुट, मतलब अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, इसको समझते हैं कि अगर इसका यूजर इंटरफेस समझना है, सबसे पहले क्या है कि कहीं से भी हमें कुछ ओपन करना है, कोई मॉडल ओपन करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फाइल हमने क्रिएट करी है वो ओपन करनी है, तो बेसिकली ये क्या है, एक सिंपल फाइल मेन्यू है जो आपको रिलेटेड चीजें आपको बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा व्यू। व्यू भी हमारा क्या है, एक सिंपल ऑप्शन है जिससे आप कह सकते हो कुछ फैसिलिटीज देख सकते हो इसके अंदर, जो चीजें हमें क्या करनी है या जिसके अंदर चेंज करना है या ऑप्शंस देखनी है, कुछ पर्टिकुलर फीचर से रिलेटेड चीजें समझनी है तो हम वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे अगर मान लो अगर मैं कुछ लिखता हूँ और उसको कुछ लिखने के बाद क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे किसी चीज को सेलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट, तो वो क्या चीज होती है, रन हो जाती है, उसका आउटपुट क्या आता है, नीचे लिखा आता है। तो ये क्या है, थोड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़े से ऑप्शंस क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सर्वर क्या होता है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हम डेटा देख सकते हैं, कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। सिमिलर फीचर्स जो हमें यहाँ दिख रहे थे वहीं के वही फीचर्स हैं। कुछ टूल्स हम अगर हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, मान लो कोई अपना कहीं से हमारा कनेक्शन पहले से हमने जैसे भी कनेक्शन दिखाया था बना हुआ, उस पर काम करना चाहते हैं तो उस पर भी हम काम करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। जब आप पहली बार फाइल खोलोगे तो आपको यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपको न्यू फाइल का स्पेस क्रिएट करना है तो उस पर क्लिक करो, पहली वाली फाइल पे, तो आपका स्पेस क्या होगा, क्लिक हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा तो एकदम बिल्कुल ही इजीली समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ओके, अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें क्या करना है, एक स्पेस ओपन करना है फाइल के लिए, तो हम उसको न्यू टैब पे जब यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, एक स्पेस ब्लैंक स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब स्पेस ओपन होगा तो इसको समझ लेते हैं स्कीमा। अब स्कीमा का मीनिंग क्या है, देखो सिंपली, अगर सिंपली भाषा में कहूँ तो मान लो आज के हमारे पास टाइम में क्या है, रियल टाइम डेटा बहुत बिल्ड होता है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंपली मान लो कोई अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट बुक करता है, तो इतने सारे प्रोडक्ट को अगर कोई एक दिन में बुक करेगा तो डेटा क्या होना चाहिए, रियल टाइम अपडेट होना चाहिए, रियल टाइम चेंज होना चाहिए, रियल टाइम क्या होना चाहिए, उसके इनपुट्स बिल्ड होने चाहिए। तो जब मान लो जब डेटा का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए भी एक क्या करते हैं, डेटाबेस यूज करते हैं। अब डेटाबेस होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो मान के चलो व्हाट इज डेटाबेस और व्हाट इज लाइक सीक्वल। सीक्वल है क्या, सीक्वल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इट इज अ domain specific programming language which is used to manage the manipulate the relationships of the databases। डेटाबेसेस के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई थी, उसका नाम क्या था, सीक्वल। और माई सीक्वल क्या है, एक डेटाबेस है। जो डेटाबेस है वो क्या करता है, एक तरीके से डेटा स्टोर करता है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें डेटा कैसे स्टोर होता है, तो मान के चलो कि मेरे पास एक फोन है, उस फोन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। जब मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ, जब सपोज लिख देता हूँ शकीला। ठीक है, उस फोल्डर को जब मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो मैं उसके अंदर क्या करता हूँ और क्या करता हूँ, 5 फोल्डर बना के क्लिक कर लेता हूँ। 5 फोल्डर सब फोल्डर बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं एक फोल्डर में रखता हूँ अपनी पिक्स, एक में रखता हूँ मैं वीडियो, एक में रखता हूँ मान लो मेरा कंटेंट रख लेता हूँ पढ़ने के लिए, एक में सारी मान लो कि मैं रिकॉर्डिंग वीडियोस रख लेता हूँ जो मेरी कहीं कहीं ना कहीं यूज होनी है। ठीक है, तो अगर सिंपल भाषा में कहें कि शकीला यहाँ पे क्या है, एक तरह का फोल्डर है। शकीला के अंदर जब हमने देखते हैं एक ऑप्शन लिखा हुआ टेबल। टेबल क्या है कि वो शकीला के अंदर सारे टेबल्स का क्या करते हैं, जो टेबल में डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, कि टेबल की तरह डेटा में स्टोर होता है। मान लो अगर सिंपल बात में कहूँ, एक फोल्डर मैंने बनाया जिसका नाम रखा शकीला। शकीला के अंदर मैंने 4 मिनिमम फोल्डर बनाए, उसके अंदर अलग अलग नाम रखे। तो वैसे ही क्या होता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, शकीला। तो शकीला क्या है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम जब डेटा स्टोर करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में करते हैं। टेबल्स की फॉर्म में करते हैं तो हर टेबल का क्या नाम है, एक अलग नाम है। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है, एक सिंपली मान लो समझने के लिए, वो डेटाबेस जो क्या करता है, लार्ज वॉल्यूम में किसी डेटा को स्टोर करता है, उससे रिलेटेड क्या करता है, वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन स्टोर करके अपना डेटा रिकॉर्ड करके रखता है, अपडेट करके रखता है, यूज करने में आता है हमारे। तो ये होता है हमारा डेटाबेस। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी डेटाबेस का हमारा क्या होता है, एक नेम होता है। उसके अंदर जब हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। जब वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है तो कैसे स्टोर होता है, एक टेबल बना ली, टेबल को देख लिया। पहले यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस गिवन है
कि ये टेबल्स में क्या हो रहा है, डेटा स्टोर होता है। तो जैसे हमें किसी टेबल को खोलना है तो रीड करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, जो एक छोटी सी टेबल बनी आ रही है, बस इस पे क्लिक कर दोगे, एक टेबल आपके पास क्या आ जाएगी, लोड होने लग जाएगी, और वो लोड होने के बाद क्या होगा, आपको नीचे दिखेगी। मान लो सकीला डेटाबेस के अंदर क्या हुआ, एक टेबल हमारे पास है, उसे हमने खोल के देखना था, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस ये टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये डेटा क्या आएगा आपके पास, क्लिक होके ओपन होके आएगा, और ऊपर क्या आएगी, कमांड लिखी आएगी। कमांड क्या लिखी आएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस, और यहाँ पे क्या लिखा आएगा, उस टेबल का नेम। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली क्यों बता रहा हूँ ऐसे कमांड लिखी आएगी, देखो जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो उनका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, जब भी हम कोई चीज क्या करेंगे, इसमें क्रिएट करेंगे, कोई अपडेट करेंगे, या उसको रीड कराएंगे, या उसके बाद क्या कहते हैं, उसको उस चीज को ड्रॉप कराएंगे। सिंपल सी भाषा में अगर मान लो कि मैंने एक फोल्डर बनाया, एक फोल्डर में 4 सब फोल्डर बनाए, 4 फोल्डर में मैंने क्या करा, कुछ में फोटोएं डाली, कुछ में वीडियो डाली, कुछ दिन बाद क्या करा, उन फोटोज को मैं देखने लग गया तो किस कैटेगरी में आ गया, रीड कैटेगरी में आ गया। अपडेट का मीनिंग है मैंने 10 दिन बाद कुछ और डाला तो वो उसमें अपडेट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वो सबका सब मैं डिलीट कर दूँ, तो मैंने सारा का सारा क्या करा, पहले सब सारी की सारी जो मेरी टेबल्स थी, स्मॉल टेबल्स, उन्हें डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने बड़ी टेबल डिलीट कर दी। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। किसी भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब आप पढ़ोगे पहली बार कोई स्ट्रक्चर होता है। तो एसक्यूएल का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप क्या क्या क्रिएट करोगे, एक डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या क्रिएट करोगे, टेबल्स। टेबल्स कैसे क्रिएट होंगी, अभी हम सीखेंगे कैसे क्रिएट होंगी, दोनों स्टेप सीखते हैं। जिसको पहली बार में समझ भी नहीं आता वो इस बेसिक अगर लॉजिक को मैंने 2-3 मिनट बोला है, इसको सुन के समझेगा तो भी समझ आ जाएगा कि सीक्वल होता क्या है सिंपली भाषा में। अगर हम जाते हैं थोड़ा सा और आगे कि इसको थोड़ा बना के देखें दिखता कैसे है, तो मैं आपको पहले ये वाला स्टेप सिखा रहा था। इस वाले स्टेप से पहले मैं सिखाता हूँ कि जो मैं पहला स्टेप आपको सिखाने वाला था उस पर आता है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट क्या होता है, ठीक है, रीड क्या होता है, अपडेट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है। अब मान के चलो ये सारे हमारे क्या है, डेटाबेसेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए मैंने कि व्हाट इज डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस हमें पता चल गया कि क्या होते हैं, एक तरह के हमारे डेटा को स्टोर करने के, हमारे पास एक नेम से हम पर्टिकुलर डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम एक डेटाबेस कहते हैं। स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, किसी भी डेटाबेस के अंदर क्या होता है, हमारी एक प्रॉपर टेबल होती है। तो अगर हम यहाँ पे हायरार्की लिखते हैं तो हायरार्की इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले कोई भी डेटाबेस का क्या होगा, एक पर्टिकुलर नेम होगा। ठीक है, नेम होगा, फिर नेम के अंदर क्या होगा, उस डेटाबेस से रिलेटेड हमारे पास क्या होंगी, टेबल भी होंगी, उनका भी नेम होगा। उन टेबल्स के अंदर क्या होगा, हम डिटेल करके उस टेबल की वैल्यूज क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो ये क्या है, सिंपल ही है, जैसे आप एक नॉर्मल काम कर रहे हो तो वैसे ही एक काम है। जैसे अगर हम नॉर्मली पेन पेपर पे कुछ लिखते हैं, बस यहाँ पे लिखेंगे, तो उसका क्या है, सिंपल एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सारे स्टेप्स को धीरे धीरे समझते हैं। मान लो कि पहला स्टेप मैंने बताया कि मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मान लो मैंने यहाँ पे कमांड जाके, यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ, यहाँ पे कमांड लिखता हूँ। तो सबसे पहले कोई कमांड जो मैं एप्लीकेशन वाली बता रहा था, सबसे पहली कमांड है क्रिएट की। तो मान लो मैं किसी भी चीज को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने कमांड लिखी क्रिएट। ठीक है, फिर एग्जाम्पल लिखा इसके आगे, क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, डेटाबेस। डेटाबेस का नेम मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के लिए। मान लो किसी भी चीज को मैं जब क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैंने कुछ नहीं लिखा, जाके उसका नेम लिखा मैंने ब्रिलिकर। ठीक है, और यहाँ लिखा है सेमीकोलन। देखो, जब आप कुछ भी लिखते हो तो आप कोड करके कैसे लिख सकते हो, सिंपली ऐसे लिख सकते हो। हमारी 4 कमांड्स बेसिक होती हैं। कोई भी चीज आप क्रिएट कर रहे हो, कोई भी चीज अपडेट कर रहे हो, कोई भी चीज आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। वो सारे स्टेप्स हमेशा यही रहेंगे। तो पहला स्टेप अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट करके सिचुएशन लिख रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपली हमने जब यहाँ पे कमांड लिखी है क्रिएटिंग अ डेटाबेस, इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। किस पे, एक ऑप्शन हमें दिख रहा है टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो नीचे जाके देखो, जो कमांड हमने लिखी है उसका क्या आ गया, एक आउटपुट आ गया। क्या आ गया, एक आउटपुट आ गया। क्या लिखा गया, एक कमांड क्रिएट जो हमने बनाई थी वो क्रिएट हो गई है, और उसने क्या करा है, एक रो को इफेक्ट करा है, इतने ड्यूरेशन में इफेक्ट करा है। देखो, अब तो डेटाबेस क्रिएट हुआ है। अगर हम देखना चाहते हैं डेटाबेस आया नहीं आया, तो देखो स्कीमा के साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, राइट हैंड साइड। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें रिफ्रेश करने पे पता चलता है कि हाँ, हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है।
ठीक है। तो अगर क्रिएट हो गया है तो ये देखो इसके अंदर अभी कोई टेबल हमारी फॉर्म नहीं है, बस वो डेटाबेस का क्या हुआ है, नेम क्रिएट हुआ है। तो अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं समझने के लिए, कि बेसिक लेवल से चीजें समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो एक बेसिक एग्जांपल मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे ये देखना है कि इसके अंदर कितने डेटाबेस हैं। ठीक है, हाउ मेनी डेटाबेसेस आर इन माई SQL वर्कबेंच। ठीक है, कितने डेटाबेस हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना, बस जाके यहाँ पे कमांड है, जैसे अभी हमने क्रिएट की कमांड लिखी थी, यहाँ पे जाके लिखा शो डेटाबेसेस, और यहाँ पे जाके लिखा बस शो डेटाबेसेस और लिखा सेमीकोलन। इस कमांड को सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करा तो एग्जीक्यूट अ सिंगल कमांड, जितना सेलेक्टेड पोर्शन है वो रन हो जाए। तो देखो हमें क्या बता रहा है कि इसके अंदर कितने डेटाबेसेस हैं, 7 डेटाबेसेस हैं। जब SQL आप खोलोगे पहली बार, क्या होगा, आपको पता चलेगा जो कुछ काम करने वाले डेटाबेसेस आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनसे आप उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो। कुछ डेटाबेसेस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए भी क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, जो सिस्टम के बैकग्राउंड की क्या कर रहे हैं, क्वेरी समझ रहे हैं, उनका डेटा समझ रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, जो पीछे होके रन हो रहे हैं। तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया था, अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो सिंपली क्या राइट करना है, क्रिएट डेटाबेस क्वेरी। डेटाबेस जो भी आपको नाम लिखना है उसका नाम लिख लो, उसके बाद उसे क्रिएट कर लो और क्या कर लो, रन कर लो। अब सिंपली अगर मैं इसके अंदर कोई टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैंने टेबल वाले ऑप्शन पे क्या क्लिक करा है, राइट क्लिक करते ही मेरे पास ऑप्शन आता है एक टेबल क्रिएट करने। तो जैसे मान लो कि मैंने एक फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर के अंदर मैं कुछ पर्टिकुलर डेटा या कुछ पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करना चाहता हूँ, जो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो मान लो मैं एक डेटा बना रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने एक टेबल का नाम लिखा, ऐसे लिखा कार। ठीक है, इसे एक टेबल का नाम लिखा कार। तो कार के अंदर सबसे पहले क्या डिफाइन करा, टेबल नेम। ठीक है, जब हम टेबल नेम डिफाइन करते हैं तो थोड़ा सा इसको नीचे मूव करते हैं, इसके मेन्यू को समझते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या और करेंगे। ठीक है, तो जो हमने क्या डिफाइन करा, सबसे पहले टेबल का नेम। अगर हम क्लिक करते हैं कॉलम पे, और कॉलम पे यहाँ पे जाके ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या पिक कर रहा है हमारे लिए, एक आईडी। तो देखो जब आप सबसे पहले क्या करोगे, SQL में कोई भी डेटा क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल के अंदर आप एक उस टेबल की एक आईडी डिनोट करोगे। अब आईडी क्यों डिनोट करेंगे, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो आप फोल्डर में फोटोज ऐड करते हो, तो जो फोटो आपने पहले डाली होगी उसका नंबर लिखा आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वो क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। वैसे ही जब डेटा रियल टाइम सेव होता है तो क्या होता है, एक टेबल में सेव होता है तो उसकी क्या होती है, एक आईडीज के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर होता है। तो सिंपली क्या लिखा रहा है, आईडी, और यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होते हैं, अगर सिंपली सी बात कहूँ तो जब हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि उसका एक डेटा टाइप भी हमें डिफाइन करना होता है, डेटा किस तरीके से स्टोर होगा। तो सिंपली अगर मैंने लिखा है आईडी, तो आईडी हम किस में लिखेंगे, इंटीजर मतलब हमारी न्यूमेरिक वैल्यू। देखो जब भी हम कोई चीज को डिफाइन करते हैं तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर क्या करते हैं, डेटा सेट हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसने पिक करा हुआ इंटीजर, तो मैंने इसमें इंटीजर पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या दिख रहा है, कुछ यहाँ पे मुझे कंस्ट्रेंट दिख रहे हैं। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स का सिंपल मीनिंग समझ लो, जब आप कोई भी कॉलम क्रिएट कर रहे हो, आप उस पर क्या कर रहे हो, कुछ कंडीशंस लगा रहे हो। जैसे मान लो कि मैं कोई फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, पर्सनल सेटिंग लगा रहा हूँ कि फोल्डर मैं दे सकता हूँ, या मैंने हाइड कर रखा है, या मेरे अलावा कोई लॉक खोल नहीं सकता। तो वैसे ही क्या होता है, आप कॉलम क्रिएट कर रहे होते हो तो कॉलम में मैंडेटरी होती है कंडीशंस, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली अगर मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एग्जांपल के लिए आईडी में जाके मैंने क्या लिखा, सिर्फ आईडी, और नेक्स्ट कॉलम का नाम लिखा, उस पर डबल क्लिक करके कार अंडरस्कोर नेम। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब आप कॉलम क्रिएट करोगे, अगर आप छोटा नेम क्रिएट कर रहे हो तो छोटा नेम क्रिएट करो, अगर थोड़ा बड़ा नेम क्रिएट कर रहे हो कॉलम का, जैसे मैंने लिखा कार नेम, तो कभी भी कॉलम क्रिएट करते हुए बीच में स्पेस मत देना। उससे क्या होगा, वो कॉलम का स्ट्रक्चर रीड नहीं होगा। SQL क्या करता है, उसको रेगुलेट नहीं करता, उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे किसी भी कॉलम के बीच में गैप को समझे। तो आप तो या तो गैप मत दो,
या अगर आप गैप देना चाहते हो तो बीच में क्या लिखो, अंडरस्कोर लिखो। अब मान लो इसका डेटा टाइप में var कैरेक्टर रहने दे रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ कि ये तो मेरी प्राइमरी की है, ये नॉट नल। इसका मीनिंग है ये खाली नहीं होना चाहिए, इसमें हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंडीशन पे क्लिक करा मैंने, किस पे, नॉट नल पे। अब मान लो कि मैंने इसके अंदर क्या करा, एक सिंपली एक और चीज क्रिएट कर दी कि यहाँ पे मैंने लिखा कि कार, अगर फिर कार से रिलेटेड डेटा बना रहे हैं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मॉडल। क्या लिख दिया, मॉडल। अब मॉडल मेरा मान लो कि क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर मैं कोई इंटीजर डिफाइन करना चाहता हूँ इसके लिए, जैसे मान लो मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया, इसकी एक लिमिट डिफाइन कर दी, मान लो 4। ठीक है, 4 तक डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि मॉडल तो है, अब इसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो मैंने एक कॉलम की हेडिंग लिखी सेलिंग अंडरस्कोर प्राइस। तो जैसे अगर हम कॉलम से रिलेटेड डेटा, कॉलम का नेम क्रिएट कर रहे हैं, वैसे इसके क्या क्रिएट कर रहे हैं, उसकी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर हम पहला स्टेप ये करके कर रहे हैं, कॉलम्स सबसे पहले टेबल क्रिएट करी, फिर कॉलम्स हेडिंग क्रिएट करी, उसके बाद किस पे क्लिक करा, अप्लाई पे। तो देखोगे आपके पास एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट फॉर्म हो गई। अगर आपको पहली बार भी कुछ नहीं आता, ये स्टेप्स आप समझ रहे हो, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो समझ के। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कोड लिखा रहा है, जिसमें क्या लिखा रहा है, एक टेबल क्रिएट हुई है जिसके अंदर ब्रिलिका वाले डेटाबेस के अंदर, उस टेबल का नाम क्या है, कार। उसके अंदर कॉलम्स क्या है, हमारे सारे कॉलम्स हैं, आईडी, कार नेम, ठीक है, कार मॉडल, कार प्राइस। और इसके आगे क्या लिखे हुए हैं, ये डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के अंदर क्या लिखी हुई हैं, कुछ पर्टिकुलर हमारे करेक्टर, अप टू दिस करेक्टर ये क्या उठाएगा, कि डेटा उठाएगा। क्या उठाएगा, डेटा उठाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके आगे क्या लिखी हुई है, कंडीशंस, कि ये सारी चीजें नॉट नल होनी चाहिए। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी आईडी। तो प्राइमरी आईडी हमारी कौन सी आईडी है, ये पहली वाली आईडी, हम इसको क्या कह रहे हैं, प्राइमरी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा अप्लाई और करा रन और करा इसको फिनिश। ठीक है, अब मैं इसको अगर यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे टेबल पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो इसके अंदर मेरे पास एक टेबल क्रिएट होके आ गई है जो अभी खाली है। और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, कार नेम लिखा हुआ है, मॉडल लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्राइस। अब मैं अगर इसके अंदर कुछ डेटा फिल करना चाहता हूँ तो मैंने क्या करा, सिंपली इसके अंदर कुछ डिटेल फिल करने के लिए क्लिक करा, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 5। तो क्या है कि आप बिल्कुल सिंपल वे में क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो सब कुछ। तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा कोई कंपनी का नाम, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे मारुति, यहाँ पे जाके लिख दिया एग्जांपल के लिए समझने के लिए, मान लो मैंने लिख दिया टाटा। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने समझने के लिए टोयोटा। ठीक है, टोयोटा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एग्जांपल के लिए BMW। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए मैंने लिख दिया महिंद्रा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने समझने के लिए लिख दिया निसान। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, अभी यहाँ पे मैं डेटा फिल करके आपको, सॉरी एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक डेटा फिल करके दिखा रहा था। तो यहाँ पे मान लो कि अगर हमें डेटा फिल करना है तो मैंने ऐसे फिल कर दिया। चलो एग्जाम्पल को लिख देते हैं, यहाँ लिख देते 6, यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए निसान। ठीक है, अगर मुझे मॉडल लिखना है कोई, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मॉडल लिख दिया, नेम मान लो कि ऑल्टो लिख दिया, ऑल्टो 800। ठीक है, तो बहुत इजी है फिल करना, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको ज़्यादा आना चाहिए, बस थोड़ा समझ के आना चाहिए कैसे आप लिख सकते हो कि वैल्यूज हम जब फिल कर रहे हैं तो बस थोड़ा आइडिया से फिल करनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप पहली बार यूज़ करोगे, थोड़ा इंटरएक्टिव वे क्या हो जाए आपके लिए, समझने के लिए ईजी हो जाए कैसे कंडीशन सारी क्या फॉर्म हो रही है। महिंद्रा में लिख दिया हमने एग्जाम्पल के लिए थार, निसान में मैंने लिख दिया XX, कोई मॉडल XXG मान लो, ऐसे लिख दिया समझने के लिए निसान का मॉडल। और अगर प्राइस लिखना है तो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, इसका प्राइस 6 लाख लिख दिया। ठीक है, यहाँ नीचे गए मैंने लिख दिया 5 लाख, ऐसे लिख दी वैल्यू। ये मैं क्यों आपको पहले समझा रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो इतना घबराने की, समझने की जरूरत है, बस इसको समझ के अंडरस्टैंड करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर डेटा फॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो कि डेटा से रिलेटेड ऐसी वैल्यू फिल करेंगे कि जो हम समझ पाए कि डेटा कैसे स्टोर कर रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको पहले देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे किस पे क्लिक करा, अप्लाई पे। किस पे क्लिक करा, अप्लाई पे। तो देखो अब क्या आ गई है कि जैसे हमने पहले टेबल क्रिएट करी थी, अब क्या आ गई है, उसकी इंसर्ट स्टेटमेंट बन के आ गई हमारे पास। इंसर्ट स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, अच्छा आगे हमें टेबल में कोई वैल्यू फिल करनी है तो हमें कौन सी स्टेटमेंट अगर बनानी पड़ेगी, पहले बनानी पड़ेगी इंसर्ट, इसके अंदर करेंगे इनटू, इसके अंदर डेटाबेस कौन सा, ब्रिलिका, टेबल का नेम क्या है, कार, उसके अंदर हमारे सारे कॉलम्स क्या हैं, ये हैं।
ठीक है। उनमें क्या वैल्यू फिल करनी है हमें, जो जो वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है वो उसमें फिल होनी चाहिए। उसके बाद किस पे क्लिक करा, अप्लाई पे, ठीक है। यहाँ पे किसी कंडीशन का एरर दे रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। कंडीशन का एरर दे रहा था, लेट एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं। और डेटाबेस में हमने जाके कोई गड़बड़ यहाँ पे थोड़ी सेट करी है। मॉडल नेम में हमने ये वैल्यूज, मॉडल नेम को जाके हम चेंज कर देते हैं, सिंपली डेटा टाइप कर देते हैं, इसका वेर कैट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिमिट सेट कर देते हैं सेम, ठीक है। और इसको ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, चेंज हो गया, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को अगर दोबारा अप्लाई करते हैं और दोबारा अप्लाई करने पे देखते हैं अब हमारी कमांड रन होगी। तो सिंपली कुछ नहीं है कि आपको बस थोड़ा सा ध्यान सिंपली ऐसे रखना है, टेबल बनाते हुए कैसे वैल्यू फिल हो रही है। अब देखो, जब मैं इस टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वैल्यू मेरी क्या आ रही है, फिल आ रही है। क्या आ रही है, फिल आ रही है। तो देखो ये सिंपली क्या थी, कमांड्स थी। जैसे हम अगर यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे क्रिएट वाली, कि क्रिएट से हमने पहले यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्या करा कि हम गए, हमने डेटाबेस का नेम क्रिएट करा, ठीक है। फिर हमने क्या करी, टेबल्स क्रिएट करी। कैसे क्लिक करी, इस पे राइट क्लिक करके क्लिक करी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उन टेबल्स के अंदर हमने क्या क्रिएट करा, उसकी डिटेल क्रिएट करी। डिटेल्स क्या क्रिएट करी हमने, कि मान लो उसकी पूरी टेबल का स्ट्रक्चर हमने इंटरनली क्या करा, डिसाइड करा, वैल्यू फिल करी, ठीक है। एक एक करके वैल्यू फिल करी। तो ये कुछ सिंपल वे में आप एसक्यूएल यूज करना सीखोगे कि पहले डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे ये सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख के आ रही है तो ये कमांड रन करने पे पूरा डेटा कैसे रीड हो रहा है, डेटा रीड होने पे नीचे कंडीशंस हमें कैसे दिख रही हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिक लेवल पे जनरली, और कहीं ये चीजें बेसिकली ऐसे क्लियरली सिखाई नहीं जाती, ये डेमो में ही सीखनी चाहिए। कोई डेमो पता नहीं पूरा बता देता है, ठीक है। डेमो ये पूरा बता देता है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और ये होती है थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है समझने में, पर ये क्लियर डेमो जो बताने का तरीका वो बेसिकली ऐसे ही है। So this is the demo session, okay, and thanks everyone. We'll continue to deliver a lot more videos after this video. Like share this video with your friends to get the correct demo information about SQL, okay. So thanks everyone, and we will shoot another video for you in the upcoming days. Thank you. Preview.